Dr. Malik, I just wanted to say, I would want to thank Parul University, IIM, VLF. Over a decade of my radio, I think I've interviewed just everybody possible in Delhi. I work in Delhi. और पता नहीं ऐसा कैसे है कि मैं किसी सेमिनार या कॉन्क्लेव में पहुंचती हूँ तो आप यहाँ जा चुके होते हो या आप आने होते हो. In like my 10 years, it's the first time that I'm meeting her and I think I just want to thank you. मुझे last minute बोला गया था कि मेरा session change हुआ है. So I believe that, good things happen and that's exactly what this session is all about. So welcome. If you don't have a tissue, you really don't need one right now because I think आज हम इतना कुछ सीख के जाएंगे. When I look at you, ma'am, and when we see this video, we don't see a chair, we don't see a story, we just see a woman who says, bring it on. Just keep bringing it on and I'll keep knocking it off the ground like you do. Such a pleasure to have you, Dr. Deepa Malik. मतलब ऐसा कोई अवार्ड नहीं है जो यहाँ नहीं है. इससे पहले कि मैं बोलती जाऊँ, मुझे रुक जाना चाहिए. I have a question and I think that's how we'll start, Dr. Malik. What makes you you? आपको Dr. Deepa Malik क्या बनाता है? What is it about you that is just so unbreakable? Gratitude. I think मैं इसको आगे समझाऊंगी बच्चों को. उससे पहले let me express my heartfelt gratitude to Parul University, to Immune. What a beautiful organization. छोटे छोटे बच्चे 16 साल की उम्र में तो हमें यही नहीं पता होता था कि हमें करना क्या है. And they are talking about startups, they are talking about future, they are talking about sustainability, they are talking about literature. Amazing. ये कुछ थोड़ी बहुत वैसे तो I love the Gen Z और Zen A, Beta, अभी जो भी नए शब्द हैं, लेकिन मेरी जितनी भी थोड़ी सी भी मिसकंसेप्शंस थे वो आज बिल्कुल इरेज हो गए. इतना ब्यूटिफुली ऑर्गेनाइज्ड ये इवेंट है. थैंक यू पारुल यूनिवर्सिटी एंड थैंक यू स्टूडेंट्स. मैं इतने बुक लॉन्चेस में जाने लगी हूँ लेकिन इतने सारे बच्चे from their free will to come and hear you, I'm really grateful. You said what makes me me? Yeah. I think what makes me me is the attitude of gratitude. Because मैंने अपने जीवन से यही सीखा है कि जब आप किसी को धन्यवाद देते हैं या जब, चलिए मैं आज बच्चों से पूछती हूँ, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, कोई मुझे बताएगा कि आप ग्रैटिट्यूड कब फील करते हैं? आप वहीं खड़े होकर बोलिए, मुझे आवाज आ जाएगी. कभी ग्रैटिट्यूड फील करते हैं? ग्रेटफुल फील करते हैं? कोई तो करता होगा. इतनी बड़ी. You can raise your hands and just speak from there. हाँ जी. Okay, somebody from here, yes. Very good. मतलब जब आप खाना खाते हैं आपके अंदर एक धन्यवाद की भावना आती है. You feel grateful. Yes. Why? Because you are looking at the positive side of it. आपको लग रहा है कि आज मेरे प्लेट में भोजन है, मैं इसे खा रहा हूँ, इससे मेरी सेहत बनेगी. सो कहने का अर्थ ये है कि जब आप ग्रेटफुल फील करते हैं तब आप डेफिनेटली चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से देखते हैं. क्योंकि आप तारीफ उसी की कर सकते हैं, धन्यवाद उसी चीज़ का दे सकते हैं जिसके लिए आप ग्रेटफुल फील करते हैं, आप धन्यवाद फील करते हैं. तो धन्यवाद जब आप किसी चीज़ का करते हैं तो वो आपको अच्छी लगती है और बार बार जब आप अपने जीवन में धन्यवाद देते हैं इसका मतलब आपके अंदर एक हैबिट बनती है अच्छी चीज़ों की ओर गौर करने का. और जब आप किसी भी चीज़ में अच्छाई ढूंढने लग जाते हैं तो ऑटोमेटिकली एक हैबिट क्रिएट होती है पॉजिटिव थिंकिंग की. यू बिकम अ पॉजिटिव थिंकिंग पर्सन when you feel grateful because you are able to identify what is good around you. And I think मैंने वही किया. मैंने अपने पूरे जीवन में, आपने देखा, मेरी कहानी भी देखी, तकलीफ़ें बहुत आईं, लेकिन अगर मैं तकलीफ़ों पे ही गौर करती रहती और उन तकलीफ़ों के अंदर if I had not looked for the silver lining in the clouds, I would have never been able to make the silver medal for my country. I read in one of your interviews where you said that, the body can be paralyzed, the soul is not. Yes. And you don't really have to stop. Ma'am, मैं आपकी बुक के बारे में बात करना चाहती थी. Honestly, I thought I'll ask you कि कितना मुश्किल रहा अपनी जर्नी को वापस revisit करना for the book.
But I think I'll just change it a bit and I would ask you, क्या सच में कुछ impossible है when you look back at your own journey? And I'm sure when you wrote the book as well, Bring It On, वो कितनी बारी thought अपने आप आया होगा ना? You speak to yourself and then you're like, did I really do it 10 years ago? Did I really do it 20 years ago? वो moments आए and is it something impossible ever? बिल्कुल आए एंड इम्पॉसिबल भी डेफिनेटली एक शब्द है, लेकिन इम्पॉसिबल के चारों तरफ आप अपने आप को मनूवर कैसे करते हो? क्योंकि मेरे पापा ने शायद एक किताब पढ़ी थी और उस किताब में से उन्होंने मुझे समझाया था कि जब भी आप अपने लिए कोई भी गोल सेट करो या आप कोई एम रखो लाइफ का या आप कोई भी कार्य अपने हाथ में लो, whenever you take something in your hand, your goal should always be smart. S specific, M measurable, A attainable, T time bound. It has to be, and R stands for realistic. Wow. मैं आज यहाँ बैठकर ये कहूँ कि मुझे आज रात की चाय चांद पे पीनी है, तो वो इम्पॉसिबल होगा. लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि आज मैं अपनी पढ़ाई शुरू करूँगी, मैं एक एस्ट्रोनॉट बनूंगी और कभी ना कभी मैं चांद पर जाऊंगी, वो मेरा एक स्मार्ट गोल होगा. तो यू हैव टू क्रिएट द राइट डेफिनेशन ऑफ पॉसिबल एंड इम्पॉसिबल इन योर लाइफ, एंड दैट इज व्हाट आई हैव लर्न. सो मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ अपनी ज़िंदगी से. जब मैंने तैराकी शुरू करी, व्हेन आई स्टार्टेड स्विमिंग, तो नेशनल मेडल्स मिले मुझे, मैं नेशनल रिकॉर्ड होल्डर भी बन गई, बिकॉज चेस्ट बिलो पैरालिसिस है मुझे. व्हेन आई से चेस्ट बिलो पैरालिसिस, आप एक बार खड़े होगे बिकॉज आई कांट स्टैंड. यहाँ के नीचे मेरा कोई शरीर का हिस्सा काम नहीं करता है वॉलंटरीली. इनवॉलंटरीली तो आपने सबने बेसिक साइंस एंड बायोलॉजी पढ़ी है कि किडनी कीप्स मेकिंग यूरिन, योर इंटेस्टाइन्स एंड योर अदर पार्ट्स कीप मेकिंग स्टूल, योर लंग्स इनवॉलंटरीली कीप ब्रीदिंग. लेकिन मेरी बॉडी में मेरा छाती का निचला हिस्सा लकवाग्रस्त है. कोई भी बॉडी पार्ट इसके नीचे मेरे कंट्रोल में नहीं है. आई डोंट हैव सेंसेशन, आई डोंट हैव नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल जो एक ह्यूमन बॉडी में होती है. ओनली हाफ माई लंग्स इनफ्लेट बिकॉज रेस्ट हाफ आर पैरालाइज्ड. और जो मेरे रिब्स के बीच की मसल्स हैं वो भी पैरालाइज्ड हैं. तो एट सम पॉइंट ये रिब्स बार बार हार्ट को और लंग्स को प्रेस करती है. वेरी कॉन्शियसली आई हैव टू कीप पुशिंग माई बॉडी बैक. बिटवीन शोल्डर ब्लेड्स आई हैव मोर देन 183 स्टिचेस, 7 वर्टिबल डिस्क्स आर कट, और मुझे ब्लैडर और बाउल की शक्ति नहीं है. मतलब कब बाथरूम जाना है, कब स्टूल पास करना है, वो मुझे बहुत कॉन्शियसली मनूवर करना पड़ता है. पानी कब पीना है, कब नहीं पीना है. सो ये मेरी बॉडी है जिसमें रेपिटेटिव 3 मेजर सर्जरीज हो चुकी हैं. और उसके साथ मैंने जब तैरना शुरू किया तो, और मुझे को नेशनल गोल्ड मिले, तो आई वॉज वेरी हैप्पी. ऐसे अरे वाह, 36 ईयर्स में आई स्टार्टेड स्विमिंग. लेकिन जब मैं इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में जाती थी तो मेरा कोई बहुत ज़्यादा मेडल्स नहीं आते थे. I kept realizing कि I'm working very hard. I have worked really hard, honestly, dedicatedly, but internationally I'm not able to make any medal for my country. And people started saying just because she comes first in India, she wastes the Indian money, goes out and comes back with nothing. Now I realized what was wrong. I assessed, I recalibrated my body. Now when I am swimming in the water, I am categorized as no use of legs. When I say no use of legs, that means जिसको कोई भी बॉडी में पैरालिसिस नहीं था, जिसके लंग्स बिल्कुल प्रॉपर फंक्शन करते थे, जिनको टॉर्सो का बैलेंस था, ग्लूट मसल काम करते थे, लेकिन सिर्फ उनकी लेग्स में या तो पोलियो था या उनकी लेग्स कटी हुई थी, लेग्स ही नहीं थी, तो उनका बॉडी कंट्रोल वॉज फार बेटर. बॉडी वेट इन द वाटर वॉज लेस. मेरे शोल्डर्स भी वीक थे बिकॉज शोल्डर्स के बीच में काइफोटिक डिफॉर्मिटी आ गई है स्पाइनल कॉर्ड की सर्जरीज के बाद. इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर मी टू ब्रेक दैट टाइम. इट वॉज नॉट पॉसिबल. सो दैट इज द टाइम आई रियलाइज्ड कि ये इम्पॉसिबल वर्ड मेरी जिंदगी में आ चुका है. और प्रैक्टिकली, नॉलेजेबली, कॉन्शियसली अगर मैं इसको सोचूं तो मैं कभी अपने देश के लिए स्विमिंग में इंटरनेशनल मेडल नहीं बना सकती. इम्पॉसिबल. बट व्हाट वाज पॉसिबल? आई
made a world record swimming against the current in Yamuna River. And that I made possible by declaring that yes, I am a good swimmer if I get an equal field of play. What was possible at 40, I started learning javelin, discus and shot put. I left swimming and I made a medal for my country possible. Not one, not two, but 23 international medals. And so you have to choose your possible and impossible. और खूबसूरत बात ये है कि चॉइस आपके हाथ में है. Always. I think I'll let Yatharth ask the next question. Youth की बात हो रही है. Maybe it's him. Hello. So, ma'am, as you told about your story, of course, it's a great story. We all get inspired every time we hear that. But, am I audible, guys? Yes. थोड़ा okay. ऊंचा बोलो. So, मैम जैसे आज की जनरेशन है और आज की जनरेशन में एवरीथिंग इज़ वेरी मच फास्ट पेस्ड. सब चीज़ बहुत एकदम सब लोग रेस में लगे हुए हैं. ऐसी जनरेशन में जो यूथ हैं वो अपनी एंग्जाइटी, स्ट्रेस, इन चीज़ों को मतलब हैंडल नहीं कर पाते. तो व्हाट डू यू थिंक, आपने अपनी सक्सेस भी देखी है, फेलियर्स भी देखे हैं, सो व्हाट डू यू थिंक इस जनरेशन को क्या चीज़ इफेक्टिवली काम कर सकती है जो उनके सक्सेस के सीक्रेट मंत्रा हो सकती है अकॉर्डिंग टू यू? ठीक है, आपकी जनरेशन को मैं आप ही की भाषा में एक सवाल पूछती हूँ कि जब आप सब कंप्यूटर यूज करते हैं, सब कितने लोगों के पास लैपटॉप है और वो उसको यूज करते हैं, और कितने जो पीसी पे काम करते हैं, कीबोर्ड और पीसी पे काम करते हैं? या एक बेसिक सवाल, कंप्यूटर कौन कौन चला लेता है, चाहे वो लैपटॉप हो, आईपैड हो या जो भी हो? ओ माय गॉड, प्रैक्टिकली एवरीवन. जब वो हैंग हो जाता है तो आप क्या करते हो? क्या करते हो? रीस्टार्ट करते हो. रीस्टार्ट के लिए कौन सी कीज इस्तेमाल होती है? नहीं, पावर. और बताओ, बोलने दो. लाउडर, somebody say it fast. कंट्रोल ऑल्ट डिलीट. जब भी आपको एंजाइटी होती है, मतलब आपका सिस्टम हैंग करने लगा है, और उसके लिए आपको क्या करना है? आपको अपने आप को रीबूट करना है, रीस्टार्ट करना है. यू हैव टू जंप स्टार्ट योर सेल्फ ऑल ओवर अगेन, विच मीन्स you need your motivation back, you need your energy back, and for that what do? You alternate a few things. Alternate that thing which is not working for you. Swimming was not working for me, I shifted gears to athletics. आप alternate करो, and first take control of your situation. Assess your situation. What is going wrong? What is going right? Am I in the right direction? Am I taking the right kind of knowledge? What are the solutions that I can find for this situation? When you have taken charge, when you have taken control of your situation, then you start alternating things around it. And in the end, delete the unnecessary. आधे से ज़्यादा बार तो हम इतना भार लेके चलते हैं मानसिक रूप में कि हम इतना भर लेते हैं अपने चिप में जिसकी ज़रूरत ही नहीं होती. उसको डिलीट करना. द एक्सटर्नल वॉइसेस, द फीलिंग्स ऑफ एंग्जाइटी, फीलिंग्स ऑफ इनसिक्योरिटी, फीलिंग्स ऑफ डिफीट, यू हैव टू स्टार्ट डिलीटिंग देम एंड यू हैव टू रीस्टार्ट योर सिस्टम. और इन सब के लिए यू हैव टू हैव एन एंकर. फॉर एग्जाम्पल, जब मेरी ज़िंदगी में सब कुछ रुक गया था, मेरी ज़िंदगी में मेरे को पैरालिसिस हो गया, मेरी बेटी को पैरालिसिस हो गया, मेरी दूसरी बेटी पैदा हुई, वो भी लड़की पैदा हुई, तो लोगों ने बोला इसके तो बेटा भी नहीं है, ये ऐसे है वैसे है. तो मैंने ये वॉइसेस को, अननेसेसरी वॉइसेस को मैंने डिलीट किया. और मैंने फिर एंकर क्या था, हम सबके अंदर कुछ ना कुछ एक ऐसी चाहत या एक ऐसी चीज़ होती है जो जब सब कुछ रुक जाता है उसके बाद भी वो आपको मुस्कुराने की वजह देती है. और वो क्या होती है? वो आपकी हॉबीज़ होती हैं. आज की जनरेशन इतनी फास्ट पेस हो गई है कि उन्होंने हॉबीज़ को छोड़ दिया है, लाइक बुक रीडिंग, राइटिंग अ पोएट्री, लिसनिंग टू म्यूजिक, डूइंग अ डांस, मेकिंग अ पेंटिंग, गेटिंग इनटू थिएटर.
ये वो एक्टिविटीज़ हैं जो आपके सोल को स्माइल करती हैं. दे बिकम अ फूड फॉर योर सोल. एंड व्हेन यू कैन मेक योर सोल स्माइल. आप सबने वीडियो देखी, आपने देखा मेरे एंकर्स क्या थे. मेरे एंकर्स थे, आई लव ड्राइविंग, आई लव मोटरसाइकिलिंग, आई लव आउटडोर्स, आई लव एडवेंचर, आई लव कुकिंग. और ये सारी जो मेरी हॉबीज़ थी वो फिर मेरी स्ट्रेंथ भी बनी और उन्होंने मेरे को एक रीज़न दिया to do something in life. And I'll tell you how important these hobbies were, that उन्होंने मेरे को एक पहचान भी दी, एक वजूद भी दिया, एक रीज़न भी दिया to speak about ability beyond disability. And do we have that video? 3 record video. बच्चों को मैं 3 record video दिखाऊं कि मेरा स्पोर्ट्स का शौक, मेरा ड्राइविंग का शौक, वो मेरे सोल के लिए इतना स्ट्रॉन्ग फूड बना कि वो चेंज का भी एक मीडियम बना. कैन आई हैव दैट वीडियो प्लीज? कैन वी प्ले अगेन द वीडियो? कैन वी? Now on to the story of a champion who overcame all odds to become a sports star in her own right. Vishal Baristow meets the woman. Malik has won mentions in the Limca Book of Records in 2 different categories. In January this year, she set a new record for riding a special bike for 55 kilometers at a stretch. She backstroked against the Yamuna currents for a kilometer. I trained for 3 months at Lakshmibai National Institute of Physical Education at Gwalior, and it was hard work because my coach told me we don't get permissions in my disability category. They don't allow people in my disability category to take that open river water swimming. It has never been done in India before, and I had to really take a special permission and convince them that I want to do this. यमुना किनारे दीपा को लेकर लोग नदी की तरफ बढ़े तो सब देखने को बेचैन थे कि दीपा तैरेगी कैसे. जिसका आधा जिस्म बेजान हो, लकवे से जिसके पैर ना हिलते हों, वो तैरेगी कैसे. पर दीपा ने तैरना शुरू कर दिया. I'm very proud that I'm back from a Leh Ladakh exhibition drive, which I did in my vehicle, driving as one of the drivers. Did 3,000 kilometers in 10 days, covering 9 high altitude passes on the highest motorable roads, doing an average of 300 kilometers per day at an average high altitude of 15,000 feet above sea level. Ladies and gentlemen, boys and girls, literally a huge round of applause for Dr. Deepa Malik. मैम आई जस्ट वांट टू आस्क, जस्ट गोइंग आउट ऑफ द फ्लो ऑफ क्वेश्चंस, जिद्दी होना कितना ज़रूरी है ये सब करने के लिए. इट्स ऑलमोस्ट लाइक अब ये हो गया, अब मैं क्या ऐसा करूँ जिसमें फिर मुझे हाउ वो फायर कहाँ से आती है? फायर पर्पस से आती है. बिकॉज पर्पस ये था कि मुझे लोगों के माइंड में अपनी एक नई पहचान बनानी है. मैं थक गई थी ये सुन कर कि ये अपंग है, इसकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, अब तो इसका जीवन एक कमरे में अपने ही बाथरूम, अपने ही स्टूल में रह के ख़त्म हो जाएगा. ये एक अपंग माँ है, ये अपंग बेटी को कैसे बड़ा करेगी. बिकॉज मेरी डॉटर 14 मंथ्स की थी, उनका रोड एक्सीडेंट हुआ, उनको हेड इंजरी हुई. तो बचपन में मैं नहीं चलती थी और मेरी बेटी के बचपन में मेरी बड़ी बेटी नहीं चलती थी, उनका लेफ़्ट साइड पूरा पैरालाइज हुआ. तो एक टाइम ऐसा था जिसमें हम सभी मतलब इतना वो हो गया था कि इतनी सारे इल्ज़ाम, जिसे कहते हैं ना इल्ज़ाम, दे वर नॉट इवन ताने, वो इल्ज़ाम थे. और वो भी उस चीज़ के लिए जो मैंने खुद नहीं चुनी थी. कैन यू बिलीव इट? इफ़ यू रीड माई बुक आपको पता चलेगा कि जिस साल मैंने ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीता था
और जिस बॉडी के लिए लोग मेरी तारीफ करते थे, ओ माय गॉड शी इज सो ब्यूटीफुल, शी इज गॉट 2 daughters, she beat the young models and she became one of the Navy queens, my god. Same month, 2-3 महीनों के बाद आई गॉट पैरालाइज एंड सेइंग, अरे इसका शरीर तो कंडम हो गया, ये तो जिंदा लाश हो गई, ये तो अपने बिस्तर में ही मूत देती है, इसको तो पूरा जिंदगी कौन ढोएगा, ये तो मुसीबत बन गई. सो कहने का अर्थ ये है कि what is beauty, what is human being, what is the feeling and identity of a person. क्या ये शरीर ही हमारी पहचान है या हमारी आत्मा, हमारे विचार या हमारी. तो मेरी ज़रूरत थी उन मानसिक धारणा को बदलने की. और तो मैंने फिर ये, और मुझे बहुत सीखना पड़ा. पहले तो मैंने अपने शरीर को सीखा, तैरना सीखा, गाड़ी चलाना सीखा, गाड़ी चलाने के लिए गवर्नमेंट की परमिशन कैसे मांगते हैं वो सीखा. मैंने कोर्ट में जाके अपनी अपील्स रखी. मैंने कभी अपने घर से बाहर कदम नहीं रखा. मैंने रेस्टोरेंट चलाना सीखा पैसे कमाने के लिए. सो मैंने बहुत सीखा. और वही वाली बात है कि कदमों को रुकना मंजूर न था, कदमों को रुकना मंजूर न था. मेरी अपनी कविता का अंत है ये, एक कविता का, कि कदमों को रुकना मंजूर न था, राहें और भी तो है, तय तो करना है तो क्यों न हंसकर, ये जिंदगी एक सफर ही तो है. और सफर को आप अंग्रेजी का सफर बनाएं या हिंदी का सुहाना सफर बनाएं, अगेन चॉइस इज इन योर हैंड. नियति ने मेरे साथ क्या किया वो मेरी चॉइस नहीं थी, लेकिन जो मेरे साथ हुआ उसमें इस जीवन को कैसे गुजारना है, that was my choice. So choose rightly and that is my energy. Similarly मैम, जैसे आई डोंट नो अबाउट अभी की जनरेशन, बट पहले मुझे पापा पढ़ाते थे लहरों से डर के नौका पार नहीं होती. इट इज़ एग्जैक्टली द सेम एज यू आर सेइंग. सो coming to the next question, ma'am, it is about the recent Paralympics that happened. Yes. It was nothing short of extraordinary performance from Indian players. So how do you feel about this achievement, and what role do you think that initiatives like Khelo India program have increased visibility of para sports have played in this success? I'm so happy कि आप लोग पैरालंपिक्स को सेलिब्रेट कर रहे हो. और मैंने आज ही CEO सर को भी और डायरेक्टर सर एंड MD सर सबको एक रिक्वेस्ट भी भेजी है. और यहाँ से मैं पूरी पारुल यूनिवर्सिटी के बच्चों को भी अपील करूँगी, टीचर्स, स्टाफ, इतना खूबसूरत ये प्रांगण है, यहाँ पे भी पैरा स्पोर्ट्स के कॉम्पिटिशन्स के लिए हमारा सपोर्ट करिए. और आप सब वॉलंटियरिंग करिए, बिकॉज हम में से कोई भी मेडल नहीं जीतता अगर हमारे साथ व्हीलचेयर असिस्टेंट नहीं होते या अच्छे कोच नहीं होते. तो वी नीड टू ग्रो द इकोसिस्टम. अब मैं आपको ग्राफिक जो स्टैटिस्टिक्स की और आपका ध्यान लेके जाती हूँ. आप सबको पता है कि पहला मेल मेडल कब आया था इंडिया में पैरालंपिक्स में? चंदू चैंपियन नहीं देखी? मुरलीकांत पेटकर सर ने पहला मेडल जीत लिया था इंडिया के लिए 1972 में. और पहला महिला मेडल कब आया? ये तो पता होगा, अभी अभी सुना. पहला महिला मेडल किसने जीता? कब जीता? 2016 में जीता. सो मेल मेडल कब बना? 1972. फीमेल मेडल कब बना? What took India so long? Why is this gap? One. From 1968 to 2016, India had won only 12 medals in Paralympics in so many years. And there was only one female Paralympic medal, that was mine. Now I will take you to the statistics of Tokyo 2020 and Paris 2024. In just 8 years, and luckily for me, and I'm so proud that ये दोनों जो Paralympics हुए, I was the president of the Paralympic Committee of India, and 48 medals were won in just 48 medals were won. और लड़कियों के कितने मेडल आए?
14 medals were given by the females. Guys, a huge round of applause. अब इतने दशकों में 12 मेडल और औरत का 1 मेडल, और मात्र 4 साल या 8 साल के अंदर हमारे पास 48 medals in total and 14 female medals get added. Why? Now the question is why? A, inclusive policies. Kudos to Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, who created so much of awareness, who spoke about the Paralympics, who made the policies inclusive. अंत में क्या काम करता है? इंक्लूसिव पॉलिसी काम करती है. जब आप गवर्नमेंट की ओर से ही एक पॉलिसी बना देते हैं कि आज से दिव्यांग खेल, पहले तो अपंग बोलते थे, प्रधानमंत्री जी ने हमें दिव्यांग कहा, और दिव्यांग जब आपको कहा तो उसके अंदर एक इज्जत आई, एक रिस्पेक्ट आई, एक फोकस आया, और ये पॉलिसीज जो नई बनकर आई. खेलो इंडिया अभी तक हमारा पैरा खेलों का एक ही हुआ है, जो ओनली 1 एडिशन, बट इट इज़ एडेड टू द मेन स्ट्रीम ऑफ खेलो इंडिया. लेकिन जो टारगेट ओलंपिक्स पोडियम स्कीम है, जो फंडिंग स्कीम है, जो नेशनल स्पोर्ट्स कोड रिवाइज हुआ है, जो डेवलपमेंट ऑफ पैरा स्पोर्ट्स एज पर द नेशनल स्पोर्ट्स कोड, विच मीन्स हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में ये स्पोर्ट्स खेला जाए. तो जैसे जैसे इसकी अवेयरनेस बढ़ी, जैसे जैसे पॉलिसीज़ में हमें अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, कैश अवार्ड्स, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, ये मेन स्ट्रीम इंसेंटिव्स जब हमें मिलने लगे, तो ऑटोमेटिकली ये गेम को ये मिला. एंड मेरे जो सबसे खूबसूरत बात ये है कि अब जो हमारी फेडरेशंस हैं वो एथलीट सेंट्रिक हैं. एक औरत को जो दिव्यांग है, जो खिलाड़ी रही है, उसे आपने प्रेसिडेंट बनाया है, तो उसे पता है कि दिव्यांग खेलों में क्या चाहिए. सो इंडक्शन ऑफ एथलीट्स back into the system of administration has also become a huge key to winning these medals, and this change has happened. और क्या वो वीडियो आई है सर? प्रधानमंत्री वाली भी आ गई है. आप देखिए प्रधानमंत्री खुद कैसे एक दिव्यांग खिलाड़ी का हौसला बढ़ाते हैं, तो क्यों नहीं मेडल आएंगे? कैन वी प्ले मोदी जी वाली एक वीडियो? जी. आप में से मैं सबसे आग्रह करूंगा, कभी दीपा से मिलिए. एक खिलाड़ी के रूप में तो सारा हिंदुस्तान जानता है दीपा को, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि इससे बढ़िया मैंने कोई मोटिवेटर नहीं देखा है. कभी सुनिए उसको. शरीर का आधा हिस्सा काम नहीं कर रहा है, लेकिन जब भी बात करती है, नए सपनों की बातें करती है, नए उमंग की बात करती है, नए हौसले की चरितार्थ करने की बात करती है. ये हैं लोग, और ये हमारी युवा पीढ़ी के हीरो है. तो मैम आपने अभी मैम आज के इंडिया तब से अब तक क्या कर रहा था? तो मैम इंडिया तब से अब तक खेलो इंडिया का इंतजार कर रहा था, और आपका कमेटी का चेयरमैन पर्सन बनने का इंतजार कर रहा था. नहीं, रोम वॉज नेवर बिल्ट इन अ डे. हर नींव का पत्थर जरूरी है, हर बिल्डिंग ब्लॉक, every brick in the wall is important, and I'm just another brick in the wall. वाओ. मैम, क्योंकि खेलो इंडिया की यूथ की बात करिए, स्पोर्ट्स में अभी भी ना वुमेन कंपेयर टू मेन द रेशियो इज स्टिल वेरी स्क्यूड. 30% पॉपुलेशन ऑफ वुमेन स्पोर्ट्स. भाई पैरा स्पोर्ट्स में तो 45% हो गया है. But you know, overall scheme of things, Deepa ji, if I can ask you, you know, what is it that stops women from participating? You know, a girl goes out from Haryana, takes the Indian platform, and then you go to the international platform. बहुत सारी लड़कियाँ क्यों नहीं कर पाती? You know, that सपना वर्ड कईयों का कहीं अटका रह जाता है. Like, what happens? I think एक हमारा जो mindset है, मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ. मैं सिंगापुर गई थी बैंकिंग विमेन कन्वेंशन के लिए. पूरे संसार की 800 लीडिंग बैंकिंग वर्टिकल की विमेन एम्पावर्ड. नाउ कैन यू इमेजिन women who are CEOs, women who have studied from Stanford, Harvard and all that. तो एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर आई थी, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया.
उन्होंने स्प्लिट ऑफ अ सेकंड के लिए स्क्रीन पे एक फोटो दी और सबके हाथ में एक वोटिंग मशीन दी. एवरी चेयर हैड अ वोटिंग मशीन, जैसे आप केबीसी वगैरह में देखते हैं. तो उन्होंने वो सवाल पूछा और सवाल पूछने के बाद एक फोटो दिखाई. मतलब बस यही था, एक फोटो आएगी स्क्रीन पे, आप उसको देख के, और उस फोटो पे 2 नाम लिखे होंगे. आप ए पे जो नाम है या बी पे जो नाम है, आप उसको ए या बी दबा देंगे और वोटिंग हो जाएगी. तस्वीरें आई. पहली तस्वीर आई रसोई, एंड दे वर जस्ट फिगर्स. फिगर्स मीन्स जो हम एक बचपन में फिगर नहीं बना देते थे, एक सर्कल होता था, एक सीधी लाइन होती थी, उसके 2 हाथ. व्हाट इज इट कॉल्ड? Stick figure. स्टिक फिगर. आई डिडंट नो द वर्ड. आई लर्न समथिंग न्यू टुडे. तो वो स्टिक फिगर्स बनाई थी. उसमें कोई बाल नहीं लगाए थे, कोई रिबन नहीं लगाया था, कोई चोटी नहीं बनाई थी, कोई मूछ नहीं लगाई थी. दे वर जस्ट इमेजिनेटिव स्टिक फिगर्स. किचन का सीन आया, टायर पंचर लगाते हुए का सीन आया, हवाई जहाज का सीन आया, और कपड़े धोने का सीन आया, और उस पे नाम लिखा था माइकल, एना, जॉन, जेनिफर, ऐसे करके. एंड कैन यू इमेजिन दोज बैंकिंग वुमेन ऑफ 800 का क्राउड था. जब कुकिंग का सीन आया तो जेनिफर के नाम से वोटिंग आई. जब वो पंचर लगाने वाली फोटो आई गाड़ी के आगे तो जॉन के ऊपर नाम आया. जब बर्तन धोने का समय आया तो उसके आगे एना आ गई, और कुछ हवाई जहाज की फोटो आई तो माइकल आ गया. इंस्टिंक्ट, फर्स्ट इंस्टिंक्ट, मतलब वो सिर्फ तस्वीर सेकंड के लिए आती थी और चली जाती थी. कह रही दिस इज हाउ आवर माइंड्स आर ट्यून्ड. वी विमेन आर ओनली ट्यून्ड इन अ वे कि कपड़े धोना मेरा काम है, हवाई जहाज चलाना. हालांकि बहुत बदल गया है हिंदुस्तान के. अगर आप अमृत महोत्सव के या माई गव के इंस्टा को फॉलो करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड टुडे the women are doing so well, and I'm so proud of being a woman of India today. But महिलाओं को भी अब ओनस लेना है. और देखिए, मैं घर की एक गृहिणी थी जो पैरालाइज हो गई थी, लेकिन जब मैं उठी मैंने कहा मैं वो बदलाव बनूंगी जो बदलाव मैं चाहती हूँ. महात्मा गांधी कहते हैं बी द चेंज दैट यू वांट टू सी अराउंड यू. So you have to yourself become the change. Why the women percentage is low? Because women have to come forward. They have to learn new skills. They have to become a participation. They have to ask कि ये मेरा हक है और ये मैं करना चाहती हूँ. आज आसमान खुला है, आपको पंख बनाने हैं और उड़ान भरनी है. आज का ये है, क्योंकि माइंडसेट. और मैं उन सभी महिलाओं को कहूँगी भारत की कि अपने बेटों को ऐसा बड़ा करो कि वो कभी इंटिमिडेट ना हो और उन्हें महिलाओं को बराबर समझने की अनुभूति हो. तो बेटों को भी बड़ा हमें उस प्रकार से करना है. तो आई थिंक ये कुछ बदलाव हमें लाने हैं. लेकिन आपको मैं बदलाव का भी एक एग्जाम्पल बताती हूँ कि हम लोग रियो गए थे. मैं भैंसवाल कला तहसील गोहाना सोनीपत डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से बिलोंग करती हूँ. मेरे हस्बैंड वहाँ के हैं और मेरे ही गांव के पहलवान हैं योगेश्वर दत्त. आप जानते हैं, सब जानते हैं योगेश्वर दत्त जी को. ओलंपिक मेडलिस्ट है, हाँ तो बोलो. हाँ, योगेश्वर दत्त का बाउट अच्छा नहीं गया रियो ओलंपिक्स में. और खेलों की ताकत देखिए और एक महिला की मेहनत की ताकत देखिए कि जब गांव के सरपंच, हरियाणा में बहुत बड़ी बात होती है, हमारे गांव का छोरा गया से, हमारे गांव का छोरा ओलंपिक मेडल लाएगा. तो उन्होंने जब नहीं आया तो दूसरे गांव के उसने ठिठोरी हंसी खिंचाई करी, ले भाई तेरे गांव का तो बट्टा बैठ गया, तेरे तो ना आता मेडल. गांव का बूढ़ा सरपंच उस खाप में क्या बोला, रुको हमारा एक शेर अभी बाकी है. And he was referring to भैंसवाल की बहू दीपा मलिक in Rio Paralympics. और जब मैं वापस लौटी 200 गाड़ियां भर के गांव की वहां आई. गांव के सरपंच ने मेरे को पगड़ी बांधी, जो कि पगड़ी हमेशा लड़कों को बांधी जाती है. मेरे हाथ में गदा दिया और गदा हमेशा हिंद केसरी, पहलवान, कुश्ती, कबड्डी, वेट लिफ्टर,
बड़ी बड़ी मसल वाले आदमी को दिया जाता है, लेकिन एक दिव्यांग महिला को जो 46 साल की थी उसको वो गदा दिया गया, ये कह के कि बेटा जिंदगी के अखाड़े में बल दिखाने के लिए आपको ये गदा दिया जा रहा है। और जब मैं बाहर आ रही थी एयरपोर्ट पे, मुझे पता लगा मलिक खाप बाहर खड़ा है, गांव के सारे सरपंच खाप के बड़े बड़े, वहां पे कम से कम 80 बुजुर्ग हैं जो 80 साल से बड़े हैं जो बाहर खड़े हैं। तो मैंने कहा हे राम, मैंने तो चुनरी भी नहीं ली, बिंदी भी नहीं लगाई, मंगलसूत्र भी नहीं है, चूड़ी भी नहीं पहनी, मैं तो ट्रैक सूट में बिल्कुल आदमियों की तरह आई हूँ, बाल भी छोटे छोटे करा रखे थे। तो जब उनको ये खबर लगी कि दीपा डर के मारे बाहर नहीं आ रही है, कि मैं गांव वालों के सामने कैसे जाऊंगी, मैं तो गांव की बहू हूँ, तो सरपंच ने मुझे बाहर से फोन किया, मलिक खाबे 89 ईयर ओल्ड मैन जो कौन से सदी का होगा, उसने मुझे क्या कहा, ये लड़कियां गौर से सुनो कि आप कैसे मानसिकता बदल सकती हो अपनी मेहनत से। उन्होंने कहा जो संसार में तिरंगा उड़ाकर आई है उसे सर ओढ़ने की क्या जरूरत है, जिसके गले में भारत का पहला मेडल है उसे गले में क्या जेवर डालने हैं, और जिसने वो कपड़ा पहना है जिस पे इंडिया लिखा है उसको क्या सलवार कमीज पहनने की जरूरत है। और मैं चाहूंगी कि आप उस मूवमेंट को देखें जब भारत के इतिहास में एक दिव्यांग महिला जिसका कोई शरीर का अंग काम नहीं कर रहा है और 46 साल की उम्र में वो ये मेडल आप लोगों के लिए लेकर आई है। कैन आई हैव द रियो वीडियो प्लीज? Yes, the women's shot put F53 final. This a seated throwing event. And this is Deepa Malik of India. All the throws happening together. Malik, who's won silver in the shot in the 2011 World Championships. She's from New Delhi. It was a decent one out towards 5 meters here. And that's 461. Well, here's history. India's first ever female Paralympic medalist in any sport, Deepa Malik, picks up the silver. From New Delhi, silver medalist in the javelin at the 2014 Asian Games. First major championship was actually in Delhi for the Commonwealth Games in 2010. They have a strong parasports program embedded within. But Deepa Malik receives India's historic silver. Goosebumps. मतलब मैम आई डोंट थिंक सो ये हम बॉलीवुड में कितनी फिल्म्स देखते हैं विच आर रियल लाइफ बेस्ड, बट जो गूजबम्स एक असली स्पोर्ट्स पर्सन, एक असली एथलीट अपनी स्टोरी से आपके सामने बैठ के दे सकता है, ये रोंगटे नहीं खड़े हो रहे आपके यार बार बार? for once, I think it's like time and again, it's wax, so I can't see it, but I can feel it. मैम for once, I think इंडिया के लिए मेडल आया तो एक बार इंडिया के लिए बनता so है। guys, भारत माता की यार जोर से बोलो, भारत माता की जय। Ma'am, a question before we move on to our rapid fire, because it's a part of it's a youth leaders that you know are in the making. एक question है कि आजकल influencer term के पीछे सब जा रहे हैं. We all want to be an influencer, but I think we've just forgotten how to be a leader. And you just choose to be a leader every time you take up something new. Just share in some values, some qualities जो शायद youth में आज होनी चाहिए to be the leader for tomorrow. I think आज का जो यूथ है वो बहुत एजुकेटेड है, बहुत अवेयर है, और लेकिन एक रिक्वेस्ट मेरी यूथ से रहेगी कि यू ऑल हैव गेन्ड इंटरेस्ट, नॉलेज एंड दैट अवेयरनेस, ये मेरा हक है, ये मुझे मिलना चाहिए। आपने अपने राइट्स के बारे में आपने सब कुछ लर्न कर लिया है, लेकिन संविधान पढ़ेंगे तो हर भारत के नागरिक को जितने उसके राइट्स हैं उतनी उसकी ड्यूटीज भी हैं। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया यू हैव ड्यूटीज टुवर्ड्स योर कंट्री, टू योर सोसाइटी, टू योर नेशन, टू योर ऑर्गेनाइजेशन। आप जहाँ भी काम करते हैं
वहाँ मेरा हक है, मेरे को इतनी छुट्टी मिलेगी, मेरा हक है, मुझे इंक्रीमेंट मिलेगा, मेरा हक है, ये मेरा राइट है। लेकिन क्या आपकी ड्यूटी नहीं है? क्या आपकी ड्यूटी नहीं है कि आप अपने देश में जहाँ भी रहते हैं वहाँ पे आप सुगम्यता बनाएं, वहाँ के एरिया को आप स्वच्छ रखें, वहाँ पे अगर कोई गरीब है उसकी मदद करें, या फिर आप कोई ना कोई एक ऐसा इनिशिएटिव लें जिसमें आप विकसित भारत में अपना योगदान दे सकें। सो आई थिंक अगर आप कोई भी अपनी ड्यूटी को with a consciousness of your duties towards whichever organization you are, and with full honesty do your preparations for that particular job, you will automatically move towards becoming a great leader. Because leader वो ही बन सकता है जो preach करने से पहले उस चीज़ को practice कर चुका हो। क्यों मेरे बच्चे इतने मेडल लेकर आए? जब मैं पैरालंपिक कमेटी की लीडर थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी जो उनसे कहती थी उन्हें पता था ये कर चुकी है, और ये जो भी कहती है उसको वो एक्शन में निभा चुकी है। तो लीडर वो अच्छा बन सकता है जो खुद पहले जो भी वो सिखा रहा है उसे खुद जी सके, जीवंत अपने अंदर जी सके। तो वो भी एक लीडर की बहुत बड़ी क्वालिटी है। और एक चीज़ आप हमेशा याद रखें, चाहे आप टीम लीडर हो या आप आगे चल के पेरेंट बने या आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लीडरशिप रोल में हो, योर टीम विल नेवर बी व्हाट यू वांट देम टू बी। योर टीम विल ऑलवेज बी हु यू आर। सो यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स योरसेल्फ, एंड व्हेन यू हैव परफेक्टेड योरसेल्फ यू विल बी अ ग्रेट लीडर। मैम पहले जैसे आपने बताया हरियाणा में पहले चाहे कुछ भी बोलते हो, अब तो सब यही बोलते हैं कि हमारी छोड़ियाँ छोड़ों से कम है के। सो गाइस, अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मैम प्लीज। मैम, सो इट्स one word and whatever comes to your mind thereafter. So one word के लिए one word। वो आप एक लाइन भी बोल सकते हो। ठीक है। आपको कोई टॉपिक नहीं है। All right, let's start with sports. Lifestyle, Paralympics. inclusion, Your favorite sports personality. everyone who plays sports. Resilience would be It is a habit and not an act. India. मेरा। So आगे what do you think about मैम what do you think about youth? Future, Vadodara Literature Festival. enriching experience, Wow. Parul University. I think a hub of creativity, knowledge, and creating holistic education for students who study here. Ma'am, at last, IIMUN. Creating the building blocks for the nation with the right ingredients. So, You know, I've always believed that you're a great motivational speaker because I think every time, and I do a show on the radio, ma'am, so we look for content like we say, and I read a lot. I think मैं आपके quotes अब बोलना शुरू करूँगी, the time will just go by. But guys, I would just say the books are out. If you're lucky enough, आपको autograph copy भी मिल सकती है. But Bring It On is not just the name of a book, it's an attitude. And here's an example. She's legendary. Pick up your copy, कुछ ना कुछ एक पेज खोल के, वो कहते हैं ना कभी randomly आप कुछ खोलोगे, आप कुछ ना कुछ सीख के ही जाओगे. I think yes, you're right. My book is about solutions. It is not a dramatic story, a sob story कि जब मैं छोटी थी तो मैं रोती थी, फिर मुझे वो ऐड नहीं आता है कि फिर मुझे कड़ा मिल गया और फिर मैं खुश हो गई. It is a story कि सिचुएशन कोई भी रही हो मेरी ज़िंदगी में, मैंने हमेशा उसमें एक सॉल्यूशन ढूंढा है. एंड सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि अडेप्टेबिलिटी, क्रिएटिविटी, इनोवेशन एंड द विल टू लर्न. अगर आप एंड कीपिंग योर फेथ एंड होप एंड ऑप्टिमिज्म अलाइव. तो दिस बुक इज नॉट जस्ट अ स्टोरी ऑफ माई लाइफ, इट इज टेलिंग एन ऑर्डिनरी मॉर्टल वुमन who only works with 1/3 of her body always found a solution to a situation. And if we are coming to the end of this session,
Abhi ending the session. So I want to recite my favorite poem, one of my favorite poems written by me. उसमें भी मैं सिर्फ सॉल्यूशन की बात करती हूँ. ये मेरी लोग बोलते हैं कि थक नहीं जाती हो या तुम्हारे को बार बार कुछ कुछ हो जाता है, खुद अपंग हो गई, बेटी अपंग हो गई, फिर भी ये फिर भी वो. लेकिन मेरी हमेशा जब भी ऊपर वाले से बात होती है तो सॉल्यूशन ओरिएंटेड बात होती है कि जिंदगी तुमने युद्ध बनाकर दी तो क्या, जिंदगी तुमने युद्ध बनाकर दी तो क्या. और हर एक की जिंदगी में कोई ना कोई युद्ध आएगा. कोई भी ऐसा, राम भगवान की भी जिंदगी देख लो, कृष्ण की भी देख लो, तकलीफ हर एक की जिंदगी में आई. भगवान भी नहीं पीछे रहे जिनको तकलीफ ना आई. तो जिंदगी तुमने युद्ध बनाकर दी तो क्या, हार मान हथियार डाल दूंगी. मैं तो वीरांगना हूं, डटकर लड़कर जीत का संग कर लूंगी. जिंदगी तुमने तूफान बनाकर दी तो क्या, अपनी नैया को भव सागर में डूबने दूंगी. मैं तो वो मांझी हूं जो तिनके का सहारा भी ढूंढ लूंगी. जिंदगी तुमने रेत बनाकर दी तो क्या, इसे इस मुट्ठी में से फिसलने दूंगी. अपने आंसुओं से गूंद कर गागर बना पुनः खुशियों से भर लूंगी. जिंदगी तुमने आग बनाकर दी तो क्या, अपने सपनों को जलने दूंगी. मैं तो सोना हूं, तप कर निखर कर गहना बन पुनः सज लूंगी. जिंदगी तुमने जहर बनाकर दी तो क्या, जिंदगी तुमने जहर बनाकर दी तो क्या, इसे प्राणों को हरने दूंगी. मैं तो मीरा हूं, भक्ति की शक्ति से घूंट भर बेअसर कर दूंगी. जिंदगी तुमने लंगड़ी बनाकर दी तो क्या, जिंदगी तुमने लंगड़ी बनाकर दी तो क्या, उसे इस कुर्सी पर घिसटने दूंगी. मैं तो हिम्मत हूं, अपने दृढ़ निश्चय से पुनः बिन सहारे के चल लूंगी. जय हिंद. So A big round of applause, ladies and gentlemen, Dr. Deepa Malik.